Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to study the third method of the issue of shares, children. In the previous videos, I hope you are aware that we have started with the methods of the issue of shares. Under that, we have covered two methods. One was the public offer, second was to the existing equity shareholders, and this is the third method, that is offering shares to the existing employees. Yes, students, you heard it right. Here we will discuss about offering shares to the existing employees and the different types, or you can say the different offerings which are given to the existing employees, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है. So without delaying much, we will start with the topic. But before that, if you are new to my channel, children, and these videos are really helping you out, then kindly like, subscribe and share so that others also get benefit from this. Okay. So without delaying much, children, let's begin. Now this method, that is offering shares to the existing employees. यहाँ पर existing employees के बारे में बात हो रही है. So obviously a company can raise funds by offering shares to its existing employees in the following ways. And which are those ways? ESOS, ESPS, SARS, that is SARS, and sweat equity shares. ये सब क्या है, इनके मायने क्या है, what do they really mean, ये सब हम जानते हैं. So we'll start with the first one, children, that is ESOS, that is Employees Stock Option Scheme. Now, under this scheme, permanent employees, directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares. यहाँ तक तो बहुत क्लियर है कि ये किसको दिया जाता है. ये जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंपनी की या होल्डिंग कंपनी की या सब्सिडियरी कंपनी की, उनको एक राइट दिया जाता है, उनको एक ऑफर दिया जाता है कि वो इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी के एट अ फ्यूचर डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. सो दिस ऑप्शन इज ओपन फॉर देम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज, नाउ व्हाट, व्हाई दिस ESOS इज इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए है. नाउ दिस मेथड और दिस ऑप्शन encourages employees as they feel proud to be the owners of the company. That is one important thing कि employees को एक feeling मिल जाता है कि हाँ, हम companies के owner हैं, which they are working and company also benefits as it can retain good employees. तो यहाँ पर employees का भी benefit है और दूसरी तरफ से it is also beneficial to the company also, क्योंकि company by giving this option to them, to the permanent employees, they can also retain the good employees जो अच्छे अच्छे qualified employees है या talented, skillful, जो भी employees है उनको वो retain कर सकती है by offering this option. ठीक है. Now there are certain provisions, students, you should know related to this option. Okay. तो ये provisions क्या है? Let's see. The first one. A company may offer the shares directly to the employees or through an employee welfare trust. Very simple. कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्टली ऑफर कर सकती है एम्प्लॉइज को ये जो शेयर्स है, या दे शुड ऑल्सो गिव इट थ्रू एन एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट. दे बिल्ड अ ट्रस्ट थ्रू विच दे कैन गिव इट टू द एम्प्लॉइज. ठीक है. सेकेंड, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन मार्केट वैल्यू. आई वांट टू से मार्केट प्राइस. दिस इज वेरी गुड. तो यहाँ पर जो भी ये शेयर्स उनके परमानेंट एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, वो प्राइस कम प्राइस में दे रहे हैं कंपेयर टू द मार्केट प्राइस जो हाई है. ओके. देन देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year. तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. अब वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या है? पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉई यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम. इसी एक साल में वो ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉइज. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग पीरियड फॉर ऑफ 1 year का होता है. ठीक है. सो उसी एक साल में वो लोग कॉल ले सकते हैं कि उनको ये ऑप्शन लेना है या व्हाट्सोएवर देयर विश. ठीक है. देन
यूजुअली कंपनीज विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। नाउ यहाँ पे कंपनी जो है लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करती है। उसका मतलब क्या है? पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। तो दे स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड। उस लॉक इन पीरियड के थ्रू एम्प्लॉय जो है वो अपने शेयर सेल नहीं कर सकते। और ये लॉक इन पीरियड भी होता है मिनिमम 1 ईयर का बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, जब आपको ये ऑप्शन दिया है उस दिन को आप पकड़ के चलिए। फ्रॉम दैट 1 ईयर विद इन दैट मिनिमम पीरियड यू कैन नॉट सेल द शेयर्स टू समबडी एल्स, तो उसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज shares issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting rights till the employees buys the shares। बहुत सिंपल है, until and unless एम्प्लॉइज ये शेयर्स बाय नहीं करते उनको कोई वोटिंग राइट्स तो मिलने से रहे, ना ही उनको कोई डिविडेंड मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बेसिकली। नेक्स्ट इज कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS। वेरी क्लियर, ऐसे थोड़े ना उठकर वो लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, दे हैव टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल। और प्रॉपर चैनल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी हैज टू गेट इन टच विद ऑल द शेयर होल्डर्स, उनकी अप्रूवल की बहुत जरूरत है। Then they have to pass a special resolution so that they can issue this option, that is ESOS। ठीक है, then employee cannot transfer his option to any other person nor can he pledge or mortgage the shares issued under ESOS। very simple, एक तो हमने ऑलरेडी बोला कि employee cannot transfer किसी और के नाम पर नहीं दे सकते, दूसरा वो उसको किसी सिक्योरिटी के तौर पर या गिरवी नहीं रख सकते। अंडर दिस ऑप्शन, दिस टाइप्स ऑफ शेयर जो उनको मिलते हैं इस ऑप्शन के अंदर वो लोग ये नहीं कर सकते। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली चिल्ड्रन वी आर अवेयर, मैंने अभी बोला प्लेज का मतलब है गिव्स शेयर एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन। आप सिक्योरिटी के तौर पर भी यूज नहीं कर सकते, ना ही कन्वे टाइटल टू शेयर्स एज अ सिक्योरिटी टू अ लेंडर फॉर टेकिंग लोन। लोन लेते वक्त आप इसको गिरवी बिल्कुल भी नहीं रख सकते। कंपनी हैज टू सेट अप अ कॉम्पनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। वेरी सिंपल, उनको क्या सेटअप कर, उनको मतलब किसको? कंपनी को। दे हैव टू सेट अप अ कॉम्पनसेशन कमिटी सो दैट वो पूरी ESOS की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो कर सके, और जो भी वो करते हैं उनको वो सेबी के द्वारा दिए गए प्रोविजंस के द्वारा ही करना पड़ता है। दे हैव टू फुलफिल ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन। Okay, 2014. So this is about ESOS option. Let us go to the second option, children. This is also quite simple and very easy. Employee stock purchase scheme, ESPS. याद रखना, ESPS, that is employee stock purchase scheme. It is always better that you write it down somewhere so that it will help you to remember better. Now what happens under this scheme? Under this scheme, the company offers equity shares to its employees at a discounted price. देखो, this is also a very good option. कंपनी ऑफर करती है शेयर्स, लेकिन एम्प्लॉइज को करती है डेफिनेटली, लेकिन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट। ओके, तो आगे चलकर फ्यूचर डेट में वो बाय कर सकते हैं। कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फॉर द शेयर्स। तो ये जो अमाउंट जहां से वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे, ये कंपनी डिडक्ट करती है एम्प्लॉइज के सैलरी से, सो दैट दे आर पेइंग इट फॉर द शेयर्स। इट इज वेरी गुड, है ना। तो इसको भी थोड़े प्रोविजंस है, दे आर ऑल्सो वेरी शॉर्ट प्रोविजंस, दे हैव टू फुलफिल डेफिनेटली। पहला है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। डेफिनेटली डिफरेंट नंबर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो ऑफर किए जा सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। वो जो भी पोस्ट में है उनको ये ऑप्शन जरूर मिलता है। शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। डेफिनेटली इस ऑप्शन के थ्रू जो भी शेयर्स इशू होते हैं उनको लिस्ट करना जरूरी हो जाता है। ESPS shares will have a minimum of 1 year lock-in period from the date of allotment of ESPS allotment if ESPS is not a part of public issue। Definitely इनको भी लॉक इन पीरियड है, और वो लॉक इन पीरियड कितने साल का है? 1 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब आपने ये ऑप्शन उनको दिया है। बट इफ
there is always a if there, children. If ESPS is not a part of the public issue, okay, then only this can be done. Obviously these options are given to the employees only, definitely. So but they are mentioning it कि उनका लॉक इन पीरियड 1 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इफ दोज ESPS इज नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक इशू, पब्लिक को उन्होंने दिया नहीं है. कंपनी नेक्स्ट, कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी, ये हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है. ESOS के ऑप्शन में भी ये था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, provisions of SEBI regulation 2014. Then comes company has to get the approval of shareholders through a special resolution to offer ESPS. Again यहाँ पर भी वही लागू होता है, कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ती है, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है so that they can offer this option to the existing employees through to offer ESPS. ठीक है. Then comes your third important option, children, that is स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स स्कीम. यस, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स लगते हैं, आपको लग रहे भी होंगे, तो इनको आप एक ही तरीके से याद रख सकते हो. यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स, चिल्ड्रन, एंड स्टार्ट रीडिंग इट अगेन एंड अगेन so that it will, you should not end up writing something else for SARS. So it is nothing but stock appreciation rights scheme. Okay. So obviously under this scheme the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date. तो यहाँ पे employees को right दिया जाता है कि उनको appreciation मिले in the value of जो भी number of shares वो held करते हैं कंपनी के future date में. ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, the company allots a specified number of stock appreciation rights units that are linked to the value of company shares. तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स जो है उनको लिंक करती है अपनी कंपनी के वैल्यू ऑफ, आई एम टू से वैल्यू ऑफ कंपनी के जो शेयर्स है उसको ये लिंक करती है. दैट इज इफ द कंपनी अलॉट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स that are linked to the value of the company on shares on the date of allotment. मतलब इसका मुद्दा यही है कि आपको उन शेयर्स में से स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स मिलता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कंपनी के शेयर्स के ऊपर होता है. ये होता है जब ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं. यू शुड ओनली अंडरस्टैंड इन दिस चिल्ड्रन दैट एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉय को ये राइट मिल रहा है टू रिसीव अप्रिसिएशन. जितने भी वो कंपनी के शेयर्स होल्ड करेंगे उनको अप्रिसिएशन मिलेगा. कंपनी उन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक को ये स्पेशल राइट देती है जिसको हम स्टॉक अप्रिसिएशन राइट कहते हैं, जो डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स के वैल्यू के साथ जुड़ा गया है. और ये कब होता है, जब अलॉटमेंट हो रहा होता है. ठीक है, ऑन द रेलेवेंट डेट और फ्यूचर डेट जो भी है, depending upon the appreciation in the value of shares which are linked to the SAR units, employees paid appreciation value in cash or through equity shares. तो इसका मतलब है अगर आपने जो शेयर्स लिए हैं उसका अप्रिसिएशन वैल्यू आपको मिल रहा है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है SAR यूनिट से. दैट इज ऑब्वियसली स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, है ना, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट यूनिट्स. द एम्प्लॉय जो है, ये जो अप्रिसिएशन वाला जो उनको मिला है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक इट एज अ कैश और दे आर पेड दिस अप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर्स. मतलब उनको वो कंसिडरेशन कैश मिलेगा या जो वो खरीदेंगे, ऑब्वियसली वो अप्रिसिएटेड वाले ही शेयर्स खरीद रहे हैं ना, तो ये अप्रिसिएशन विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और थ्रू दे विल गिव यू मोर इक्विटी शेयर्स. You can say SARS जो है is a form of bonus compensation given to the employees if the company performs well and its market price of the shares goes up. तो ये एक बोनस वाला ही टाइप है, बोनस कॉम्पनसेशन आप इसको बोल सकते हो. ये एम्प्लॉयज को इसलिए देता है जब कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और उनके जो प्राइजेस है, मार्केट प्राइस है शेयर्स के, वो बढ़ जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है. एक अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सेकेंड इट इज लिंक्ड विद द कंपनीज वैल्यू. तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द एम्प्लॉइज डज नॉट हैव टू पे एनी पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स. सो डेफिनेटली यहाँ पर वो पे तो नहीं कर रहे ना. एम्प्लॉइज डज नॉट हैव टू पे, लाइक हाउ बोनस शेयर्स जब होता है फ्री ऑफ गिफ्ट दिया जाता है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वैसे यहाँ एम्प्लॉइज को
भी दिया जाता है ये SARS ऑप्शन, बट दे हैव टू नॉट पे एनीथिंग फॉर बाइंग एनी शेयर्स. कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉई अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन. डेफिनेटली कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉइज को 1 साल का वेस्टिंग पीरियड देती है, जिसके तहत वो ये ऑप्शन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज नो लॉक इन द पीरियड फॉर SARS. डेफिनेटली इट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग. लॉक इन पीरियड नहीं है. टू इश्यू SARS कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ये लास्ट का जो पॉइंट है ये सिमिलर है हर ऑप्शन में, जहां पर वो बोलते हैं दैट इफ यू वांट टू इश्यू SARS कंपनी हैज टू फर्स्ट टॉक टू द शेयर होल्डर्स, पास अ रेजोल्यूशन एंड देन डू द फर्दर थिंग्स. ठीक है. यहाँ पर अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन, kindly understand this topic from the appreciation in the value of shares. 1. And this appreciation is based on is paid the appreciation value in cash or through equity shares. तो फायदा तो एम्प्लॉइज का ही है ना, जो भी अप्रिसिएशन ऑफ शेयर्स इनको मिलता है, जो इन्होंने खरीद के रखा है, तो ये आगे चलकर उनको कैश देगा या कंपनी ज्यादा उनको इक्विटी शेयर्स दे सकती है. लेट अस गो टू द फोर्थ पॉइंट चिल्ड्रन, that is sweat equity shares. Now, these are shares issued by a company to its directors or employees. Underline this. Sweat equity shares जो है ये किसको दिया जाता है, डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज, अगेन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश का यहाँ कुछ नहीं है, एक तो आपको मिलेगा एट अ डिस्काउंट और फॉर एनी अदर कंसिडरेशन शायद इक्विटी शेयर्स भी दे, लेकिन कैश का सवाल ही नहीं पैदा होता है. ठीक है. It is issued in the recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profits. Definitely, ये जो डायरेक्टर्स है, ये जो एम्प्लॉइज है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी बहुत खुश है. So because they are valuing their contribution to the company which has resulted in increased profits, because of which they are given sweat equity shares at a discount or for any other consideration other than cash. ठीक है. Again, स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी परसू विद अदर इक्विटी शेयर्स. पारी परसू मतलब इक्वल फुटिंग मिलती है, मतलब दे विल बी स्वेट इक्विटी शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इक्विटी शेयर्स एट पार. सिमिलरली सेम दीज शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years. स्टूडेंट्स नाउ रिमेंबर, अब तक हम एक साल देखते आ रहे थे, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स में यहाँ पर उनको लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का है. दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड. ऑब्वियसली वो किसी और को ये स्वेट इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते. Company has to get the approval of shareholders through special resolution to issue sweat equity shares. Definitely, last वाला जो point है ये हर किसी के लिए है, हर ऑप्शन के लिए है बेसिकली. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि yes you can offer it to the employees, okay, लेकिन company has to get the approval of the shareholders through special resolution to issue the sweat equity shares. So I hope students you understood. Okay, this all these 4 options under to the existing employees under this method of issue of shares. ठीक है. ESOS हो, ESPS हो या SARS हो या स्वेट इक्विटी शेयर्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको यहाँ डिस्कशन में याद रखनी है, उनकी मीनिंग, उनका शायद उनको डिस्काउंट में दिया गया है या कंसिडरेशन इन कैश और अदर देन दैट फ्री दिया गया है because of their contribution or whatsoever. लॉक इन पीरियड याद रखना है, वेस्टेड पीरियड याद रखना है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एंड टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स. ये 5 या 4-5 चीजें जो है, ये अगर आप हेड पॉइंट्स की तरह याद रखोगे तो ये सारे 4 ऑप्शंस अंडर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो मेथड है इश्यू ऑफ शेयर्स का, आप आसानी से याद कर सकते हो. ठीक है. सो आई होप that all these 4 options are very clear to you now, and when you will go through this video definitely आपका एक revision तो हो ही जाएगा, and when you will see the highlighted points I assure you that you will be ready with these topics. And once you know how to tackle with the question, how to write it, how to understand it, definitely you will add more statement towards your answers. So on that note children, that's it in this video. I hope this concept is very clear. It is itself very clear because बहुत ही simple है, लेकिन हाँ थोड़ी टेक्निकल चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. You cannot just write about in your own words. In case of SARS जो हमने अभी टेक्निकली देखा, अप्रिसिएशन जो होता है या स्वेट में कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये छोटे छोटे जो टेक्निकल है थिंग्स, ये आपको याद करने तो पड़ेंगे. ठीक है.
So if this concept is clear, children, kindly like, subscribe and share so that others definitely get some advantage of this. So on that very good note, thank you so much, children. Soon I will be coming with next videos. Stay tuned. Kindly like, subscribe and share. Click on the bell icon for the new notifications from Commerce Tute. Till then, thank you so much, children. Thank you.